Officially open this insightful session, I now invite our Dean of Research and R&D, MPD, Professor Rakesh Kumar sir, to deliver the welcome address. A very good evening to one and all present here. On the dais, Chief Guest of the function, Honorable Vice Chancellor Dr. J.P. Sani sir, keynote speaker of this function, Dr. Dilip Kumar, Regional Director, Indian Institute of Mass Communication, Northern Regional Campus, Jammu, Associate Dean Research and Development, Dr. R.K. Yadav, and Dr. Navdeep Singh, all deans, head of departments, most respected faculty members, research scholars. It is my honor and privilege to extend a very warm welcome on this one-day workshop which is being organized in this university campus. And the theme of this workshop is value-based research and development in the light of digital age. First of all, on behalf of Dean Research and Development and Professional Practices, I would like to extend my warm welcome to the chief guest of this function. We are also highly delighted and we extend our warm welcome to the keynote speaker of this function, Dr. Dilip Kumar. Dr. Dilip Kumar, he is a very eminent person and currently he is associated with Indian Institute of Management, Indian Institute of Mass Communication, Jammu campus, and he is the founder, HOD and Professor, Journalism and Mass Communication, Management Education and Research Institute. He is a very eminent personality and he has widely traveled across the world and he has been invited as a number of keynote speakers. He has guided a number of research scholars. And as the theme of this workshop is value-based research development in the light of digital age. In fact, when I talked to the resource person, he was very humble and he said that because this workshop is being organized by the Office of Dean Research and Development, and therefore he said that this would be the most appropriate theme of the workshop. And sir, on behalf of this Madan Mohan Malviya University of Technology and Deep Research, I extend a very warm welcome to this university. Basically, the theme behind organizing this workshop was our Honorable Vice Chancellor sir. He is very much instrumental regarding research and innovation in the university. As we are knowing that we all are living in the age of digital age, and this in the digital age there is a vast amount of information and artificial intelligence is being used for making decisions in every sector of life. And it is not unknown to everyone that the penetration of artificial intelligence in every walks of life is making a strong impact everywhere. But at the same time, there is a lot of challenges coming ahead. And when we talk about like say research, innovation and research, because research and innovation, it is like a way, the way we are going to improve the processes, the way we are going to design the process, we are going to design the programs,
we are going to develop the products in such a cost-effective and economical way that serves the humanity. As we are already known that the United Nations Organization, they have in the 2015, they have set 17 SDG, Sustainable Development Goals. And the purpose of sustainable development is how to make this universe for the current generation a beautiful world without sacrificing for the future generations. So every member country of this UNO, where this 17 SDGs are being implemented, India is not like far behind. And in this all 17 SDG, the 9th SDG is, the basic goal is innovation, infrastructure. The main emphasis is how to innovate, how to create strong infrastructures. So in this, ethics is basically playing a vital role. Value based in the digital age, how we are going to devise the devices in a value based, in such a that meets the current so many aspects. So without taking any more time, now once again on behalf of Deep Research and Development, I welcome all the speakers, other faculty members sitting in this hall. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for your warm and thoughtful words. We are truly honored to have among us today Dr. Dilip Kumar, a renowned media scholar, journalist, and academic leader whose contributions to journalism, mass communication, and research span over the 2 decades with remarkable impact in both academic and professional spheres. Dr. Kumar is currently serving as the Regional Director in the Indian Institute of Mass Communication, Northern Region Campus, Jammu. He is a journalist turned academician with over 23 years of distinguished experience in the field. He is the founder, head, and professor of journalism and mass communication at the Management Education and Research Institute and has completed his postdoctoral studies sponsored by ICSSR. Dr. Kumar is an active member of several national and international academic and policy bodies, including those associated with NEP, IIPA, NUPA, Cambridge University, Harvard University, and many more. Dr. Kumar has an outstanding academic and publication profile. He has authored 42 books, contributed 22 chapters to edited volumes, published 5 papers in conference proceedings, and authored 61 research articles in reputed journals with 24 international and 37 national publications. He has also developed a MOOCs module and written more than 1,000 articles in national newspapers and magazines. As a mentor and evaluator, Dr. Kumar has supervised 5 PhD scholars, is currently guiding 6 more, and has evaluated 51 doctoral theses to date. We are privileged to have such a distinguished personality with us today. Please join me once again in welcoming Dr. Dilip Kumar with a warm round of applause. Respected Vice Chancellor, Madan Mohan Malviya Technical University, Professor Saini sir, Associated Dean R.K. Yadav, Professor Rakesh Kumar, Dean R&D, Head of Departments, Senior Faculty Members,
research scholars. It's my great privilege to speak before you in such a meaningful institute in Eastern UP Kannada. आप सभी लोग के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम समर्पित भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। विषय प्रवर्तन के बारे में मैं आप लोगों को शिक्षा दूं, अपने अनुभव साझा करूं, ये विशिष्टता में नहीं कर सकता। जो अपना अनुभव है वो आप लोगों से साझा कर सकता। मैं क्या सोचता हूं इस विषय के बारे में, what kind of insights regarding this particular topic for today I want to convey with you, I want to share with you. That is, and that should be very much meaningful for me. What kind of case situation after lunch session, ये तो अलग से ही बड़ा गंभीर विषय है जिस पर चिंता करना है। कुलगुरु जी का आदेश है तो हम सब लोग बैठेंगे ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो उस विषय को ध्यान में रख करके विषय थोड़ा इंटरेक्टिव हो, बेहतर हो, उसका प्रयास है। जब आदमी इस तरह के किसी गैदरिंग को संबोधित करता है तो कुछ पॉइंट्स बना के लाता है। मेरा संबंध मदन मोहन मालवीय संस्थान से इसलिए भी है क्योंकि मैं स्वयं 12वीं तक का मेरा जो अध्ययन है वो इसी संस्थान के निमित्त है। मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज, मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही हूं, भाटपा रानी, वहां से मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई है। वो यात्रा जो मैंने वहां से शुरू की थी, फ्रॉम दिल्ली टू समवेयर एल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वो मैंने करने का प्रयास किया। तो इसलिए गहरा जुड़ाव बनता है और उस जुड़ाव के कारण मेरा संबंध ऐसा लगता है घर वापसी हो गई है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा तनाव युक्त न करके तनाव मुक्त करने का प्रयास मेरा रहेगा। स्ट्रेस फ्री रादर स्ट्रेसफुल, वो ध्यान में अगर आता है तब और तभी जाकर के हम किसी को सुनते हैं, सुनने का प्रयास भी करते हैं। नहीं तो अन्य वर्कशॉप के तरह ये भी एक वर्कशॉप ड्यूटी है, करना ही है, कर ही लेंगे, वो भी कुछ यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज में आ ही जाएगा। आपने इतना परिचय दिया, ऐसा लगा कोई गंभीर व्यक्ति आया है। शरीर से दिख सकता है गंभीर, वास्तविकता में कंटेंट रिच है क्या, कंटेंट से उसका उतना रिश्ता है क्या, तब रिचनेस का सही पता चलता है। हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा जाता है कि तत्कर्म अन्य बंधाय सा विद्या विमुक्तये, कर्म ऐसा जो बंधन में न बांधे और विद्या ऐसा जो मुक्त करे। ऐसा लगता है क्या? कर्म ऐसा जो बंधन में न बांधे। हम जो करके आए हैं यहां पर, बंधन में बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, विचार करना चाहिए। व्याख्या बाद में करेंगे, explanation will be later on. First, whether we should think what kind of we are doing, that will be free from our internal sense or not. If it will be, definitely that discussion will be meaningful. यदि नहीं है तो उसकी रचना योजना करने की आवश्यकता है। कैसे करना चाहिए रचना योजना, उसके बारे में कुछ अनुभव अपने पास है, कुछ आपके चेहरों से पढ़ करके साझा करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र निर्माण शोध क्यों करना चाहिए, रिसर्च क्यों करना चाहिए?
वो आप मेरे से बेहतर जाते हैं। डिफिनीशन इतने बड़े बड़े, एंथ्रोपोलॉजी से लेकर के नेचुरल साइंस तक रिसर्च की जो डिफिनीशंस हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग डिस्कस करते हैं अपने रिसर्च स्कॉलर्स के साथ। लेकिन रिसर्च फॉर हुम, हर वर्ष हजारों की संख्या में रिसर्च होता है। उस रिसर्च का समाज उपयोगी होना, सोसाइटी के लिए उपयोगी होना, राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमिका होना, ऐसा रिसर्च हम कराते हैं क्या? स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए। एक देश है, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री, उसका राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण, उसके अपने भाषा, उसकी जो भाषा है वो भाषा ऐसे भाषा है, उनके रुपया, करेंसी का नाम रुपया, देश का नाम है इंडोनेशिया। वो मां सरस्वती की प्रतिमा अमेरिका के राष्ट्रपति को गिफ्ट करता है। वैल्यू जुड़ा हुआ है ना, मूल्य है। अपने संस्कृति, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति मूल्य, जो यूएस जैसे रिसर्च, जहां हार्वर्ड से लेकर के तमाम बड़ी संस्थाएं जो रिसर्च की है उसको देते हैं, वो मूल्य जुड़ा हुआ है। उस मूल्य के प्रति उनका समर्पण, अपने संस्कृति के लिए, अपने लिए हमारा समर्पण उस तरह का है क्या? इस तरह की सोच विकसित करने का जो तरीका है, उस पर ज्ञान ऐसा जो मुक्त करने का तरीका है, जो मुक्त करे, जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो। यहां नोटिस देकर के बुलाने के लिए नहीं, स्वयं से प्रेरित होकर आकर के बैठने की अगर योजना है, तब और तभी जाकर के हमें लगता है कि ऐसा ज्ञान जो हमें मुक्त करता है, ऐसे ज्ञान के निमित्त हम यहां एकत्रित होते हैं। वी ऑल कलेक्ट हियर, टुगेदरनेस सेंस विल बी देयर, देन एंड देयर दिस काइंड ऑफ डिस्कशन विल बी मीनिंगफुल। ऐसा भाव हम रखते हैं क्या? या एक अनदर वर्कशॉप इन द सीरीज ऑफ लॉट ऑफ वर्कशॉप, जब यूनिवर्सिटी की एनुअल रिपोर्ट जाएगी, उसमें यह भी एक रिपोर्ट जाएगी, इस भाव से करते हैं। स्वयं से प्रेरित होकर के, स्वयं के लिए यदि हम कुछ काम करते हैं, तब और तब जाकर के रिसर्च वैल्यू बेस्ड रिसर्च बनता है। इस तरह की योजना को एप्रिशिएट करने के लिए यह विश्वविद्यालय एक ऐसे हाथों में है जो अपने विजन के लिए और उस विजन को पूरा करने के लिए मिशनरी अप्रोच रखने के लिए प्रोफेसर सैनी को जाना जाता है। अब कई बार मन में ध्यान आता है, ये गेस्ट बन करके आए हैं, इसलिए कुलगुरु की तारीफ कर रहे हैं, अगली बार फिर बुलाएंगे। नंबर अभी बढ़ाना है। ऐसे मन में भाव लेकर के यदि हम कोई कार्यशाला, कोई आनंदशाला, कोई वर्कशॉप यदि सुनते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है और मेरे जैसे व्यक्तित्व का यह भाव भी नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, उनको लगता है ये स्वभाव से शांत, विचारों में क्रांति लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे ही भाव से हमें काम करना चाहिए और रिसर्च की बुनियाद ही वहीं से शुरू होती है। आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं। नहीं है, उसके लिए तर्क का निर्माण करना, संबंधित साहित्य को पढ़ना और पढ़ करके अकॉर्डिंगली एम्पेरिकल वर्क करना,
और फिर नया रिजल्ट लेकर के आना, वो रिसर्च ही तो है। और वो ही रिसर्च अगर हम सुनने और सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, जो इस पक्ष में है जो उस पक्ष में भी है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके रिसर्च करते हैं, कलेक्टिव रिसर्च, कलेक्टिव एफर्ट डालते हैं, वो भारतीय मूल्य है। और यही मूल्य बेस्ड रिसर्च है, वैल्यू बेस्ड रिसर्च है। मैं जो कर रहा हूं किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये मन में भाव है, मेरा रिसर्च नंबर 1, मेरी एपीआई नंबर 1, मैं नंबर 1, अगर ये भाव है, ये एकांगी शोध है, ये एकांगी रिसर्च है। ऐसे रिसर्च से आज वर्ल्ड पैरामीटर पर, आज वर्ल्ड सिनारियो में आप देखिए, कलेक्टिव रिसर्च, चाहे वो हार्वर्ड का हो, कैम्ब्रिज का हो, कलेक्टिव रिसर्च एफर्ट पर जोर दिया जाता है। हर एक पोर्शन को 10 लोग मिलकर के, अब तो शायद यूजीसी ने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूजीसी ने भी सभी जो कंट्रीब्यूटर है रिसर्च में उसको इक्वल एपीआई मार्क्स दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक के बजाय अगर 4-5 लोग ऐसे रिसर्च करते हैं जो अपनी पुरातन शोध की पद्धति है, वो वैल्यू देता है उस रिसर्च को, वो इंटरनेशनल सिनारियो में रिकॉग्नाइज करता है आपके रिसर्च को, इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च दिखाई देता है। इस तरह की योजना से हमें काम करने की जरूरत है। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन, इट्स नॉट जस्ट डिग्री प्रोवाइडर। नॉलेज क्रिएशन होता है क्या? आप लोग अपने दिल पर हाथ रख करके पूछ लीजिए स्वयं से, हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद स्वयं कब पढ़ा है उसको? पब्लिकेशन के टाइम पर भी हम चैप्टराइजेशन और रिसर्च पब्लिश करने जैसा कुछ बना लेते हैं, खुद उसको पढ़ करके इसकी इवेल्युएशन खुद करते हैं क्या? या डॉक्टरेट डिग्री लेने के बाद एक लाइन जरूर कहा जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले लखनऊ में था, और रिसर्च का जो ओरिजिनल सेंस है वो आप लोगों को भी पता है। रिपोर्ट जाती है तो रिपोर्ट के साथ कौन से लोग कैसे जाते हैं और कैसे फोन जाता है और कब तक रिपोर्ट भेज देनी है, ऐसा रिक्वेस्ट भी जाता है। और हर साल हम डिग्री दे ही देते हैं पीएचडी की। मुझे लगता है कि उसमें वैल्यू देना जरूरी है। दैट विल बी वैल्यू बेस्ड रिसर्च। और वो आज के एज में, डिजिटल एज में, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब बड़ा आसान हो गया है। रिपोर्ट कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है, वो बड़ा आसान हो गया। तो मुझे लगता है कि इसकी बात थोड़ी सी करनी चाहिए। और एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च की एक अनदर वैल्यू देता है। जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सोसाइटी कर रही है क्या, दूसरे देश कर रहे हैं क्या, इंटेलेक्चुअल क्लास कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने बड़े मीनिंगफुल रिसर्च किए, सारे लोगों ने किए होंगे। बहुत सारे कहने से थोड़ा डर लगता है, लोग कुछ कहेंगे कि बहुत सारे में कितने लोग शामिल हैं। मुझे कहीं अलग तो नहीं कर दिया, मैं बहुत सारे लोगों में नहीं हूं ऐसा तो नहीं है। सभी लोगों ने बड़ा मीनिंगफुल रिसर्च किया। उस रिसर्च का एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा बातचीत हमने किया है क्या कभी? मेरा ये रिसर्च है, आज मैं अपने रिसर्च के बारे में आपको बताता हूं। पहले हम एक जानते हैं, अगर उनके बारे में भी रिसर्च जान जाए तो एक दूसरे का रेफरेंस फ्यूचर में अगर हम देने स्टार्ट करेंगे तो साइटेशन की संख्या भी शायद बढ़ती है। हम करना ही नहीं चाहते, इसलिए साइटेशन के मामले में हम लोग थोड़े से पीछे रह जाते हैं। एच इंडेक्स वगैरह तो बहुत दूर की बात है, वो टेक्निकल बातें हैं, आज 1 घंटे में उसे समेटना बड़ा मुश्किल है। हमें उस सब चीजों की चिंता करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। आप लोगों में अच्छे स्कॉलर्स हैं सारे, मुझे लगता है स्कॉलर बने रहना चाहिए। हम बहुत जल्दी प्रोफेसर बन जाते हैं, नौकरी मिलते हैं। स्कॉलर बने रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा रिसर्चर होना आज के एकेडमिक एज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो हमें आज डिजिटल एज में एक दूसरे से जोड़ता है। अपने अपने फील्ड के, देश के दूसरे हिस्से में क्या चल रहा है, आज एआई के वजह से
उसकी वैल्यू आप तक पहुंचेगी। आज डिजिटल एरा के वजह से उसकी वैल्यू आप तक पहुंचेगी। हम सब लोग उससे सीख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वो जरूरी भी है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऐसा एक बनाया भी हुआ है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार टाइटल फ्रेम कर देते हैं रिसर्च का, वो चेंज नहीं हो सकता। अगले आरडीसी तक भी चेंज होने की संभावना बड़ी कम रहती है। अब आप सोचिए उसमें वैल्यू कहां से आएगी। कल को रिसर्च करते करते अगर रिजल्ट किसी और ओर इशारा करता है और हमें लगता है कि ये टाइटल अब जस्टिफाइड नहीं है, तो उसका प्रोसेस कितना लंबा है। विद्यार्थी को हम सुपरवाइजर होकर के, जो विद्यार्थी सोचते हैं अब इसको क्या चेंज करना, फिर वो टेंशन कौन पालेगा। फिर आरडीसी बैठेगी, फिर 2-4 सुझाव आएंगे। एक बड़ी पुरानी सेइंग है, अमाइल दुर्खाइम की सेइंग है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे। उन्होंने कहा कि एन इडियट कैन आस्क द क्वेश्चन, ओनली एन इंटेलिजेंट कैन रिप्लाई। क्वेश्चन ही तो पूछना है, कुछ भी पूछ लो, लेकिन जो इंटेलिजेंट होता है वही उसका रिप्लाई कर सकता है। मुझे लगता है इस विषय पर ध्यान करने की आवश्यकता है। कुछ भी नहीं पूछना है। जिस विषय के आप एक्सपर्ट हैं, पीआर मेंटेन नहीं करना है। जिस विषय के आप एक्सपर्ट हैं, उसी विषय से संबंधित विषय को आपको इवेल्युएट करना चाहिए, सही मायने में उसको इनपुट देना चाहिए, ताकि भविष्य में उसकी रिसर्च वैल्यू बेस्ड हो सके और डिजिटल एज में उसकी जो रिच है वो हर जगह पहुंच सके। तब और तभी जाकर के ये चीजें होती है। अक्सर हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई बोलने आ रहा है, हमारे इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, चलो आपको प्लेटफॉर्म मिला, आप बोल लो, हम सुनेंगे नहीं, बैठेंगे। वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये भाव उत्पन्न करने के लिए भी सुनना जरूरी है। हम नहीं सुनना चाहते ये भाव लेकर के, यदि हम नहीं सुनना चाहते तो हमें कोई दूसरा क्यों सुनना चाहेगा। ये सेंस जब तक कलेक्टिव सेंस नहीं डेवलप होता, रिसर्च में वैल्यू नहीं आती। और आज इस डिजिटल एज में आप समझिए कि एक छोटी सी सोच, इनोवेटिव सोच, यदि कोई नहीं सुनना चाहता है तो भी वो रिलेट करता है बहुतों से, और धीरे धीरे वो सोच कब किसी ग्रुप की सोच बन जाती है, कब किसी सोसाइटी की सोच बन जाती है, ये पता नहीं चलता। आजकल हम रील्स बहुत देखते हैं। डिजिटल एरा का कंट्रीब्यूशन है और वो भी रिसर्च बेस्ड है। उनको वो रिसर्च है कि यदि हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं तो लोग इसको देखेंगे ही, और धीरे धीरे उनके जो लाखों में जो व्यूअर्स बन जाते हैं, धीरे धीरे वो उस फील्ड के एक मास्टर बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। वी ऑल शुड बी वेरी मच एक्सपर्ट हियर इन दिस ऑडिटोरियम and we should be act like that. Then and there we should create our identity in this world. Otherwise हम हैं से थे होते हुए देर नहीं लगेगा। एकेडमिक दुनिया में हम हैं और हम बने रहें। शरीर भले चला जाए लेकिन हमारे कामों के वजह से हम बने रहें, इसकी चिंता और चिंतन दोनों ही हमें करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि इस पर एक काम आप लोग कर ही रहे होंगे, आगे भी हम करेंगे ही। एक दूसरा जो वैल्यू के लिए बहुत जरूरी है वो रिसर्च बेस्ड डिफिसिट। इंडस्ट्री को, सर को पता होगा, सैनी साहब को, इंडस्ट्री को पहले या अदर यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्री जाती थी एकेडमिशियन के पास कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप लोग इसका सलूशन निकाल करके दें। आज इंडस्ट्री हमारे पास नहीं, हम इंडस्ट्री के पास जा रहे हैं।
क्योंकि उनमें हमारे जो ट्रस्ट डिफिसिट क्रिएट हुआ है, उनको विश्वास है कि इनका एकेडमिक जो अप्रोच है उससे हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। कितना ट्रस्ट है उनको। तो एक हमने अलग से R&D ग्रुप, R&D डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और आउटरीच डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है। एक प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए कि इंडस्ट्री शुड बी, गवर्नमेंट शुड बी अप्रोच टू द एकेडमिया, उसको सॉल्व करने के लिए हमने तीन डिपार्टमेंट खड़े कर रखे हैं और उन तीनों डिपार्टमेंट से लास्ट में हम एकेडमिक ऑडिट लेते हैं। रिजल्ट क्या है बताइए, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट क्या है ये बताइए। कल को एकेडमिक ऑडिट होने वाला है, हम नैक में जाने वाले हैं, रिसर्च की पोजीशन क्या है। आप सभी लोग वेल वर्स्ड है उससे, सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ पर, सब लोग डे टू डे उसको एड्रेस करते हैं। गलत बोल रहे हैं तो करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखने ही तो आए हैं, साझा ही तो करने आए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर हमारे वहां रिसर्च की क्वालिटी होगी तो जो ट्रस्ट डिफिसिट है गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच में, ये गैप कम होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहेंगे हु विल बी स्कैटर्ड दिस मैसेज अमंग द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। आवश्यकता नहीं है शॉर्टकट मारने की, आवश्यकता नहीं। एक शॉर्टकट भी है, उनका अप्रोच है उस संस्थान में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनको ग्रांट मिल जाएगा। ये मन में बैठ सा गया है, हम होते हुए देखते भी हैं, हो भी रहा है। लेकिन आप ध्यान करिए, सही मायने में रिसर्च ओरिएंटेशन रखने वाला एक्चुअल स्कॉलर, उसको इस से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी परेशानी होती है लेकिन उसको एक्चुअल वैल्यू मिल ही जाती है और वो होगा ही। आप ध्यान रख सकते हैं इस विषय को, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए रिसर्च को किस पर आधारित होना चाहिए। रिसर्च हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ रहा है क्या? इस ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स ये कुटुंब है, कुटुंब के लिए काम आ रहा है क्या? पहले इसकी चिंता करनी चाहिए। इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हमारे इस प्रदेश को, हमारे इस देश को उस रिसर्च का फायदा हो रहा है क्या? इस पर बात करनी चाहिए। कुटुंब के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया है, हम नौकरी कर रहे हैं 9 to 6, ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। रिसर्च के लिए, अपने स्कॉलर्स के लिए, यदि हम गुरु के रोल में हैं तो गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए। टीचर बनेंगे तो उपदेश ही देंगे, इसलिए गुरु बनने का प्रयास करना चाहिए। कई बार जब मैं ऐसे भारी भारी हिंदी वर्ड बोलता हूं तो लोगों को लगता है अच्छा ये किसी दूसरे भाव से, किसी एक विचार से पोषित हैं, उसी विचार की पोषण शक्ति को यहां प्रदर्शनी करते हुए दिख रहे हैं। ठीक बात है। जस्ट आई गिव यू एग्जांपल, कम्युनिकेशन थ्योरी के बारे में चर्चा करते। मैं चूंकि कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूं, उसी पर बात करता हूं। 350 साल पुराने मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं। एज पर वर्ल्ड रिकॉग्निशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारे वेदास हैं वो 5000 साल पुराने हैं। कुछ तो कम्युनिकेशन का कंसेप्ट रहा होगा। हमें लासवेल, ऑसगुड, सेनन वीबर, ये थ्योरी देने वाले लोग, उसके पहले कुछ तो कम्युनिकेशन की थ्योरी रही होगी। मैं कहता हूं नहीं मानो आप जो हम कह रहे हैं। आप जो कम्युनिकेशन की थ्योरी रही होगी उसके बारे में रिसर्च भी नहीं करना है, ये तो किसी ने मना नहीं किया। रिसर्च करना चाहिए कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन का पैटर्न तो रहा होगा जिसके आधार पर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। वो रिसर्च करने का भी हम जहन नहीं उठाते, हम कॉपी करते रहते हैं। बाहर जो रिसर्च हुआ है वही रिसर्च हम भी करेंगे, उसी पैटर्न पर करेंगे।
ये आवश्यक नहीं है। रिसर्च मेथोडोलॉजी शुड बी योर ओन एंड दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। वो मेथोडोलॉजी, वो प्रोसेस हमें सीखना चाहिए, करना चाहिए। और हम में से बहुत सारे ऐसे सीनियर प्रोफेसर हैं जिनकी अपने पेटेंट हैं, जिसके वजह से आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रखा है। आप लोगों ने अपने कुल गीत में कहा है, नवीन प्रयोग, नवीनता के लिए जाने जाना। नवीन क्या कर रहे हैं? 10 पेटेंट थे, 10 और जुड़ गए, उसके लिए योजना कर दिया, वो नवीन है क्या? आप करने की आवश्यकता है। और दूसरा, आप सब में एक अलग तरह का आइडेंटिटी है, एक अलग तरह का बोध है। व्हाट कैन यू डू? आप स्वयं से क्या कर सकते हैं? वो 2 बंधनों में बंधा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि कर्म वो जो बंधन में न बांधे। वो कौन से 2 वैल्यूज हैं कि आप में जो पोटेंशियल है उसके साथ न्याय नहीं होते हुए दिखता। कई बार आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर के अपने सीनियर के पास जाते हैं, वो इस ईगो में बंधा हुआ है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो तुम लेकर के आए हो तुम कैसे लेकर आ सकते, तुम तो जूनियर हो। इस बोध से उभरना चाहिए। स्वयं से घोषित आत्ममोह के शिकार सेल्फ अनाउंस्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये कुछ वर्ड हैं जिनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जिसमें हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते। सुनने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है उसके जो आइडियाज हों उसके साथ आपके आइडियाज मिलकर के एक नया आइडिया का निर्माण हो। वो बहुत जरूरी है। इसके लिए आइडेंटिटी बहुत जरूरी है कि हमें स्व का बोध है क्या, सेल्फ रिकॉग्निशन है क्या, वो स्व का बोध करने की आवश्यकता है। तीसरा, ये कब होगा स्व का बोध? जब हम स्व का बोध करेंगे, दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक समरस समाज का निर्माण, एक समरस आइडेंटिटी का निर्माण हम कर पाएंगे। सभी इक्वल हैं। वो कैसे, एक्स कैसे कर सकता है रिसर्च जबकि मैं उससे सीनियर हूं? दोनों मिलकर, एक्स और वाई मिलकर के रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? 2 डिफरेंट ओपिनियन लेकर के एक नया ओपिनियन क्यों नहीं बना सकते? एक नया रिजल्ट का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? इस बात की भी तरफ चिंता करने की आवश्यकता है। और ऐसा जब हम करते हैं तो अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं, जो संवैधानिक भी है। तो मुझे लगता है ये 5 मंत्र जो है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सब लोग शाम के रिफ्रेशमेंट के योजना में लग गए हैं, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो जो करना चाहिए, करने बिंदु हो, उसके तरफ मैं अपना अनुभव आपसे साझा करूं। इसके लिए खासकर जो रिसर्चर है, मैं रिसर्चर बोल रहा हूं, सीनियर प्रोफेसर तो ऑलरेडी बहुत रिसर्च कर रहे। हमारे एक कुलपति कहते थे, कुलगुरु बोलते हम आजकल उनको, वो कहते थे अब आप लोगों में कोई होगा तो माफ कर देना, बुरा नहीं मान, बुरा मान भी जाएंगे आप लोग तो मैं वो गुस्सा बाहर जाकर के सह लूंगा। सैनी साहब कहते थे कि जो प्रोफेसर होता है वो पढ़ाता लिखाता कम है, ज्ञान ज्यादा देता है। और कोई भी अच्छा काम करके ले आओ, सभी के लिए नहीं कह रहा, मैं भी प्रोफेसर ही हूं तो मेरे साथ भी, कोई भी काम करके लाओ, सही काम हो तो वो सही नहीं कहेगा, कुछ तो कमी निकालेगा ही। अगर सही कह दिया तो वो प्रोफेसर किस बात का? ये जो सुपीरियर होते हैं उनके साथ बहुत समस्या है। वो सही एक बार में कैसे कर सकता है, फिर वो प्रोफेसर किस बात का? तो कहते थे कि प्रोफेसर तो थोड़ा सा विद्वान होता है, वो पढ़ाता नहीं, उपदेश देता है। एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर बनने के जुगत में लगा होता है। मुझे कैसे प्रोफेसरशिप बनना है, ज्ञानी कैसे बनूं, मैं भी ज्ञान देने का कार्य करूं कैसे? यूजीसी ने बड़ा सोच समझ के वर्कलोड डिवाइड किया होगा सर, दोनों का एक ही जैसा, क्योंकि वो समझते होंगे यूजीसी में आप जैसे लोग ही जाएंगे सर कल।
वो समझते होंगे कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में ज्यादा अंतर है नहीं। एक प्रोफेसर बन के ज्ञान दे रहा है, दूसरा बनने के यात्रा में है। सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, जो लोग नहीं कहते होंगे मानना, बुरा मत मानिएगा प्लीज। और बचा असिस्टेंट प्रोफेसर, पूछ लीजिए किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से, किसी डिपार्टमेंट से, बड़ा काम है, बहुत परेशान हो गए, पूछिए उनसे, करा ये भी मुझे ही करना है, ये भी मुझे ही करना है, ये भी मुझे ही करना है। और जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनसे तो पूछे ही मत। वो प्रोफेसर साहब की क्लास भी उन्हीं को लेना है, उनका असाइनमेंट भी इवैल्यूएट उन्हीं को करना है, और प्रोफेसर साहब अपने नाम पे उसका बिल फाड़ते रहते हैं। ये बड़ा विडंबना है। तो इसके लिए मैं कुछ जो मेरा अपने तरफ से जो मैं साझा कर सकता हूं आप लोगों से। अब देखिए हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे थे, नहीं तो पीते हुए आप लोग कह रहे थे जो भी रिफ्रेशमेंट मिला हुआ है वो बहुत हो गया, कब जाओ। सुन सुन के पक गए, ऐसा नहीं है। तो क्या करना चाहिए, सभी जो हायरार्की वाइज डिफाइंड हायरार्की है उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले संपर्क करना चाहिए जो अपने से बेहतर है, नहीं भी बेहतर है तो संपर्क करना चाहिए। 100 का मंत्र दे रहा हूं जो मैंने सीखा है, तो संपर्क करना चाहिए। हम नहीं संपर्क करेंगे क्योंकि वो तो जूनियर है, नहीं कुछ इनोवेटिव आइडियाज हो सकता है। आपको भी जो जूनियर है, जो सीनियर है, आपको भी एक दूसरे से संपर्क करना चाहिए। संपर्क केवल करना नहीं चाहिए, चलिए भाई ये एक मंत्र मिला था संपर्क करने का, कर लिया, नहीं ऐसा नहीं करना। संपर्क करके दूसरा उसको सुनना चाहिए, खुद की नहीं सुनाना चाहिए। प्रोफेसर साहब लोग को बड़ा रोकना बड़ा मुश्किल काम है, वो सुनते नहीं है, सुनाते हैं। सुनो, और मैं भी सुना ही रहा हूं, ये मंच चूंकि सुनाने का है, मैं यहां पर हूं तो सुना रहा हूं। तो सुनना है, क्या पता उनके सुनने से कुछ अच्छा चीज निकले। और केवल सुनना इसलिए नहीं है कि चलो तुम्हारा दिल कर रहा है सुनाने का तो तुम सुना लो, सम्मान के साथ सुनना है तीसरा ताकि कुछ अच्छे इनपुट्स वहां से आ जाए। ये मेरे लिए दुखद विषय है कि मैं केवल सुनाऊंगा, आपसे सुनूंगा नहीं, क्योंकि अगर सुनूंगा तो बहुत सारे इनपुट्स मेरे लिए भी मिलेगा जिस पर मैं काम कर सकता हूं, लेकिन उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन कुछ इस तरह का सेशन मैंने देखा मिनट्स में नहीं है, Q&A सेशन होना चाहिए। अगर समय मिल जाएगा तो हम करेंगे। हाँ, मतलब तैयारी है। आपने तो कह दिया सर, लेकिन वो कह रहे हैं अच्छा 10-15 मिनट और गया, छुट्टी का टाइम भी हो रहा है। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ खुद को समेट दूं जल्दी। और अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए अभी जो मैंने बोला है, समर्पण की भावना, समय दान, टाइम डिवोशन, अगर ऐसा कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो समय तो लगेगा ही। समय दान देने की क्षमता है क्या? नेक्स्ट सर। और ये जब करेंगे तो उसके लिए इस तरह का कोई कार्यक्रम, समारोह करना पड़ेगा अगला सर। और जब ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं, ये भावना निर्माण जब होता है, तब जाकर के इस जो संस्था है, जो संगठन है, उसके लिए हम वैल्यू एडिशन करते हैं। और ये जब उदाहरण बनता है तो डिजिटल माध्यम से दूसरों के लिए भी उदाहरण बनता है। हम फिर लीडर होते हैं और हमें लीडर बनाने की योजना होनी चाहिए। रादर देन फॉलोवर, वी शुड बी अ लीडर। बॉस और सबऑर्डिनेट्स नहीं बनना, लीडर बनना है। अपने अपने फील्ड का लीडर बनना है, नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करनी है, वो चाहे किसी भी विचार का हो, कैसे भी विचारधारा को पोषित करता हो। लीडर यदि होता है तब और तभी जाकर के इस देश के नेतृत्व क्षमता में विकास होता है, इस संस्था के नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तो शायद उसको संगठन के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। और जब संगठन के बारे में सोचता है तो जो संगठन के पास समस्याएं आती हैं, एक और सब उसका समाधान होता है, एक और सब। और जब समस्याओं का समाधान होता है तब शिक्षा सहज होता है। जहां से मैंने शुरू किया था,
और शिक्षा जब सहज होता है तो आपको बंधन में नहीं बांधता, वो आपको मुक्त करता है। सा विद्या विमुक्तये तत्कर्म अन्न बंधाय सा विद्या विमुक्तये। ऐसा कर्म जो बंधन में ना बांधे। ये जितने कर्म हमने किए ये वैल्यू एडिशन रिसर्च करता है, और जब हम ऐसा करते हैं जो विद्या ग्रहण करते हैं वो हमें मुक्त करता है, मुक्त अवस्था में सोचने के लिए विवश करता है। और वैसा शोध और ऐसा वैल्यू बेस्ड रिसर्च आज के दुनिया में अगर करते हैं तो उसके लिए हमें चिट्ठी पत्री अखबार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेसबुक लाइव कर दीजिए, वो डिजिटल एज में दूसरे संस्थाओं तक, दूसरे स्टेक होल्डर तक अवश्य पहुंच जाता है। और इस तरह का संधान यदि हम करते हैं तो सफल भी होते हैं और हमारा जीवन सार्थक भी होता है। मुझे लगता है कि अब ऐसा जब हम करते हैं तो ध्यान से देखिए, विश्व में जो अशांति है उस अशांति में हम शांति लाने का काम करें। और इसीलिए हम कलेक्टिव एफर्ट्स के बारे में बात करते हैं रिसर्च में। जब हम कलेक्टिव एफर्ट के बारे में रिसर्च में बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, इम्प्लीकेशंस देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इस भाव की कल्पना हम साकार करते हुए नजर आते हैं। और आप यकीन मानिए पूरे वैश्विक शांति के लिए, पूरे वैश्विक रिसर्च, वैल्यू बेस्ड रिसर्च के लिए अगर आज सबसे बड़ा कोई टूल है तो वो है डिजिटल एज। और डिजिटल एज में अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम कामयाब होते ही हैं। और इस कामयाबी का श्रेय हम स्वयं को दे सकते हैं। स्वयं में हम एक बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, चलिए मिलकर एक दूसरे से प्रॉमिस करें, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सब लोग मिलकर प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। कुछ Q&A है तो एक दो ले सकते। Now session is open for question and answer. Audience के लिए जी जी। Good evening, sir. Dr. Pawan Kumar, Associate Professor, Civil Engineering Department. So, sir, my question is mostly regarding the research ethics and all. Like, for example, we have a concept like publish and perish, which is very widely used in terms of research publication. What do you feel? Is it really a good thing to have such a motivation? Because I feel having such type of motivation like publish or perish is making researchers to take all kind of, shortcuts to go for some kind of journals which are not relevant to them, or where they can publish easily, which may not have any value for them. So we are seeing that, especially in terms of research publications and all. But unfortunately, this is also being emphasized a lot, like research or perish. Otherwise, your CV and research profile will not increase. So how do we balance these things? How See, the question is very much simple. Only one thing we can do. We can do the good work. We can do the very good research. The rest depends on whether it should be published or not. That is very much important, and that is very much important for the academia in our research institution. Now in these days, we are working on particular that sense. Research should be based on research sense. Rather, it should be based on different parameter of the publications. It's okay. पूरा जो NEP है इस पैटर्न पे ही काम कर रहा है ना, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करने की आवश्यकता है पूरा का पूरा। अब ये PI का जो बड़ा बीमारी है, ये इसके अलावा भी कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं, ठीक बात है कि उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए सेट मैकेनिज्म है। लेकिन उस सेट मैकेनिज्म में भी आप नोटिस करेंगे जो गुड रिसर्चर्स हैं, वेरी फ्यू। एक रिसर्चर्स का नाम मैं बताता हूं, IIT रोपड़ के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर राजीव आहूजा, नैनो फिजिक्स।
में उनका काम है, अभी नोबेल लॉरिएट कमेटी के वो मेंबर बने हैं। उनका रिसर्च का ओरिएंटेशन एंटायरली डिफरेंट है। हमारे वहां जो सेट रिसर्च पैटर्न है उसका ओरिएंटेशन एंटायरली डिफरेंट है। वी आर वर्किंग फॉर ए PI, वी आर वर्किंग फॉर एकेडमिक नीड सेट बाय द इंस्टीट्यूशन। हर साल आपको देना ही है, तो प्रेशर है, प्रेशर कुकर चल रहा है। और कई बार तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि बाई हुक्स एंड क्रुक्स कहां से लेकर के आना है, उस पब्लिकेशंस को लेकर आना है। और उसके लिए क्लोन जर्नल्स एंड ऑल आजकल खूब चल रहे हैं। हम उस प्रेशर में देख ही नहीं पाते कि वो उस तरह के पब्लिकेशंस में हम चले गए, इवन दो कि हमारा रिसर्च बहुत अच्छा होता है, फिर भी एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं हम इस तरह का कोई रिसर्च पैटर्न यहां से डेवलप करें, वो एग्जाम्पल बने। बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं आपके ही विश्वविद्यालय में, मैं बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर पाया लेकिन 2-4 जो स्टडी कर पाया हूं, आपके विश्वविद्यालय में ऐसे रिसर्चर्स अवेलेबल है जिनके पब्लिकेशन प्रोफाइल देखने लायक है, सीनियर प्रोफेसर है जिनका पब्लिकेशन प्रोफाइल देखने लायक है। आई कैन नॉट टेक 1 or 2 नेम क्योंकि इट विल क्रिएट बायसनेस। लेकिन आप लोगों में यंग स्कॉलर्स, मैंने 5 घंटे की स्टडी इसलिए नहीं की कि मुझे क्या बोलना है, मैंने इसलिए क्या किया कि यहां की रिसर्च प्रोफाइल क्या है, उसका साइटेशन, गूगल साइटेशन क्या है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके वहां कुछ अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं जिसको पता नहीं इस क्लाउड में वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग समवेयर, दे आर डूइंग वंडरफुल। आप चूंकि सिविल से हैं, सिविल में भी कुछ एक लोग हैं, एक मैं कह रहा था कि जानबूझ के नाम नहीं लूं, मुझे लगता है कि, और मदन मोहन मालवीय जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज रहा और जब यूनिवर्सिटी बना है, मदन मोहन मालवीय का पूरा भारत में एक अलग रिस्पेक्ट रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ रिसर्च। तो आप लोग इसका क्रेडिट तो ले ही सकते हैं। तो उस सेंस में अगर काम करते हैं तो वी कैन डू बेटर। डोंट कम्पीट टू एल्स वन, कम्पीट फ्रॉम योर सेल्फ। वंस यू विल सेटिस्फाई, मैंने कहा ना स्व का बोध करना, हम क्या कर सकते हैं, कितने दूर आगे जा सकते हैं। वंस यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ रिगार्डिंग द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन डू एनीथिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन। इसलिए ये बोलना, यहां से बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा उसका सोल्यूशन निकालना उतना ही डिफिकल्ट है। ये मैं भी बोल रहा हूं ना, मुझे भी वो प्रेशर झेलना पड़ता है। इसलिए उपदेश देना, मैंने इसलिए कहा टू टीच and to preach is very easiest thing. To be a guru need a gurutvakarsan, gravity. And once you get a gravity in your field, you will become an expert. And your focus should be an expert, rather be a professor, be a vice chancellor. वो तो आप हो ही जाएंगे। रेस है, रेस में कोई जीतता है कोई हारता है, तो हम तो होते ही हैं। अच्छे स्कॉलर बनते हैं तो होते ही है, पद मिलता ही है, उसके लिए एफर्ट भी हम डालते ही हैं, रिक्वायर्ड एफर्ट तो डालते ही हैं। मुझे लगता है कि उस तरीके से अगर हम योजना करेंगे। अब आपका रिसर्च जर्नल जो इन हाउस रिसर्च जर्नल है, उसकी मार्केट ओरिएंटेशन ठीक है, वर्ल्ड क्लास कैसे हो सकता है? स्प्रिंगर में छपेगा तो बहुत अच्छा रिसर्च होगा। मदन मोहन मालवीय से ऐसा कोई रिसर्च जर्नल निकल सकता है? कौन पेन लेगा? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पेन, इट शुड बी मैटर ऑफ प्लेजर। तब वो ज्ञान आपको मुक्त करेगा। शुरुआती दिनों में लोग आपको पागल करेंगे, ये बड़ा काम करने चले, लोग कहते ही हैं। जब कुछ भी इनोवेटिव आप करते हैं तो लोग कहते हैं इनसे तो हो लिया, लेकिन वंस यू गेट योर फुटप्रिंट, लोग फॉलो करने में भी आगे रहते। इसलिए हमारे वहां जल्दी ही लोग इंडिविजुअल नेता बन जाते हैं। मुझे लगता है, मेरा अपना अनुभव ये है, बाकी आप बेहतर जानते हैं, फील्ड के लिए भी आप बेहतर अनुभव। आई होप
यू आस्क? सर टाइम हो गया है. Thank you very much to be here with me. Thank you so much, sir, for that enlightening and engaging address. Now I take this opportunity to invite our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor J.D. Sen, to share a few words of blessing and encouragement with the gathering. Thank you. Professor Dilip Kumar ji, Dr. Rakesh Kumar ji, Dean, Research and Professional Practices, Professor Navdeep ji, Professor Rajesh Yadav ji, all deans, faculty departments, faculty members and research scholars. सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर दिलीप कुमार जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस पूरे वर्कशॉप को एक खुशनुमा माहौल दिया है और आपने देखा कि किस प्रकार से एक सादगी के साथ विचारों की क्रांति उन्होंने प्रस्तुत की है. एक स्वभाव में पूरी सादगी रही, विचार कितना ओजस्वी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किए और वास्तविक रूप से किस तरह से कोलैबोरेटिव रिसर्च होनी चाहिए उन्होंने पूरी तरह से फोकस किया. मैं शुरू करूंगा डॉक्टर पवन कुमार दिखाइए भाई. उन्होंने पूछा पब्लिकेशंस, एपीआई और एथिक्स से रिलेटेड पब्लिकेशंस. तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेसर दिलीप कुमार जी ने क्वालिटी रिसर्च होगी, आप रिसर्च पर फोकस करें. पब्लिकेशन तो बाई प्रोडक्ट है आपके रिसर्च, तो आएगा ही आएगा, बट रिसर्च क्वालिटी होगी तभी आएगा. और यही कारण है, यही रीजन है कि पूरा का पूरा MEP जिस तरह से डिजाइन हुआ और किस तरह से आप लिटरेचर सर्वे करें, किस तरह से आगे बढ़े और किन चीज़ों को फोकस करें. अल्टीमेट गोल क्या है रिसर्च का? वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है कि जो भी सोसाइटी हमारी है, समाज है, क्योंकि जितने इंस्टीट्यूशंस चाहे वो कितना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वो पब्लिक फंडेड ही होता है, पब्लिक की मनी से ही चलता है और उसी के बेटरमेंट के लिए हम रिसर्च करते हैं. और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को कहाँ उसका सोसाइटी के लिए यूज है. इसलिए ये कंपलसरी किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, जो 17 SDG हैं, आपकी रिसर्च किसी न किसी SDG के साथ मैप जरूर होनी चाहिए. 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, पूरे 17 भी हो सकते हैं. इसीलिए इसको कंपलसरी किया है कि जो भी पब्लिकेशन आपका है तो तभी कंसीडर होगा अगर वो किसी SDG को, किसी गोल को टैकल करना है. थीसिस भी तभी जमा होगा, अदरवाइज उस थीसिस का कोई मीनिंग नहीं. अगर वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं. इसलिए रिसर्च स्कॉलर उसका पर्पस ही है. और क्वालिटी रिसर्च कहीं ना कहीं वी आर बाय स्टेट मिनिस्ट्री, बट फिर भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो पब्लिक मनी है जो हमारे इंस्टीट्यूट में आ रही है उसको हम पूरी तरह जस्टिफाई करें, चाहे रिसर्च के लिए हो, चाहे वेलफेयर के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए. और हर डायरेक्शन में विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है. अभी रिसेंटली जुलाई ऑनवर्ड्स जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कितने लोग हैं यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स कितने हैं? अच्छा नंबर है. आपको पता है आपकी स्कॉलरशिप बढ़ा दी है, डीन रिसर्च ने कितनी कर दी है? 18,000.
पहले कितनी थी जब आए थे? 12,500 से शुरू हुई है, 15,000, then 18,000। तो कहीं ना कहीं से वो पैसा अरेंज करके आपको देने का प्रयास है, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक मनी ही है। आपको अपने वर्क को जस्टिफाई करना, बट एक अमाउंट इतना होना चाहिए जिससे आपको प्रॉपर तरीके से कोई चिंता ना रहे, आप अपना काम करें। दूसरा, रिसर्च के लिए क्या चाहिए? अच्छी लैब चाहिए। जो भी लेटेस्ट आपके जर्नल्स हैं उनका एक्सेस चाहिए, तभी तो आप काम कर पाएंगे। लैब इक्विपमेंट्स होंगे तभी आप काम कर पाएंगे। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सभी डिपार्टमेंट्स को फुल फ्रीडम के साथ कि जो भी आपको लैब के लिए, रिसर्च के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए लैब के लिए, आप उसको परचेज करें, बट उसको जस्टिफाई भी आपको करना होगा। अगर यूनिवर्सिटी आपको 1 करोड़ रुपए किसी लैब के लिए दे रही है तो वो उतना रिटर्न भी मांगेगा, आउटकम दीजिए। कितने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, कितने PhD आ रहे हैं, कितने पब्लिकेशन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ है। उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि आपको जस्टिफाई भी करना होगा, उस डायरेक्शन में जरूर काम करिए। और अभी कई सारी चीज़ें, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, कोलैबोरेटिव रिसर्च का मतलब नहीं है। प्रोफेसर दिलीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से कोलैबोरेटिव, और ये कोलैबोरेटिव रिसर्च इस समय बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। चाहे आपको रैंकिंग कराना है, चाहे आपका पब्लिकेशंस काउंटिंग है, किसी भी, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल, पूरा फोकस कोलैबोरेटिव रिसर्च। तो आपको भी अपने पार्टनर्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन लोग किस एरिया में काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका एसोसिएशन कैसे हो सकता है। वो खुद भी प्रयास करते होंगे कि अगर आपका अच्छा वर्क है तो आपके साथ जुड़ें, तो आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आज की वर्कशॉप की, उसका पर्पस भी यही है कि एक फ्रीली किस तरह से बिना किसी टेंशन के अपने वर्क को करना है। एक तरह से बूस्टर वर्कशॉप ही है, एक रिसर्च को बूस्ट करने के पर्पज से इसको ऑर्गेनाइज किया है, ताकि डीन R&D अपनी बात कह पाए और उनके जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कर पाए पूरे डिपार्टमेंट्स के टारगेट। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि ऐसा अभी फरवरी में हमारा स्टार्ट हुआ था ये जो पेटेंट का, और अभी परसों राजेश जी बता रहे थे 40 से ऊपर फरवरी से लेकर जून तक पेटेंट फाइल हो गए हैं, करीब 7-8 ग्रांट भी हो गए। इतना ही है ना राकेश? सॉरी राजेश जी, मोर देन 40 पेटेंट फाइल हो गए, तो कई अभी इनके पास पाइपलाइन में लगे हुए। तो आप प्रयास करिए, विश्वविद्यालय आपको पूरा प्लेटफॉर्म देगा। रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैकल्टी के लिए खास, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिट होता है। आप सेकेंड ईयर लेवल से 1 या 2 बच्चे ले लीजिए, आपको लगे कि हाँ ये इस एरिया में या मेरे एरिया में इंटरेस्टेड हो सकता है। जैसे होता है ना कि भाई उस स्टूडेंट को अपने पास लाना है और उसको मोटिवेट करना है अपने काम को, क्योंकि एनर्जी से तो फुल है, बट उसकी एनर्जी कई जगह लगी हुई है। अब आपको उसको फोकस्ड करना है। आप अगर ये सोचोगे कि रिसर्च स्कॉलर से ही हम रिसर्च हासिल करेंगे, तो फिर आपका एक रिसर्च ग्रुप तो क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स उतना फोकस नहीं कर पाएंगे आपके साथ जितना वो अंडर ग्रेजुएट की, क्योंकि वो 4 या 5 जो स्टूडेंट्स आपका ग्रुप बनेगा, और वो ग्रुप आपके साथ जब जुड़ेगा तो एक चला भी जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, तो एंट्री एग्जिट होती रहेगी विद टाइम। बट एक आपकी एक अच्छी रिसर्च लैब क्रिएट हो जाएगी जो टोटली आपके स्टूडेंट्स के हाथ में है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उस स्टूडेंट को अपने पास लेके आए, कैसे उसको अट्रैक्ट करते हैं।
क्योंकि जब आप एक टीम बनाओगे ना तो स्टूडेंट्स की टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है अंडर ग्रेजुएट। अब उनके लिए इंसेंटिव्स जब आप उनको बताइए कि भाई ये रिसर्च इंसेंटिव्स आपके पब्लिकेशन आएंगे यूनिवर्सिटी में, और मेरे ख्याल से यूपी में और कोई यूनिवर्सिटी इतना नहीं दे रही होगी रिसर्च अवार्ड्स जो ट्रिपल यूपी ने डिजाइन किया है। 2 लाख रुपए तक पर पब्लिकेशन मिल सकता है। ये आपको तय करना है कि आपको वो 2 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए या 20,000 चाहिए। कितने लोग हैं जो 2 लाख के लिए इंटरेस्टेड हैं? रिसर्च स्कॉलर बताइए। 2 लाख के जर्नल में छापने वाले कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? कोई नहीं। ये देखिए एक हाथ आया, और बताइए। और 50,000 वाले हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो IEEE में पेपर पब्लिश करना चाहे, ASME में लेके जाना चाहे? ये जो नंबर कम है ना, इसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं पेटेंट का, रिसर्च का पर्पस यही है कि ये नंबर कैसे एक दूसरे को देख के मोटिवेट होंगे। बता नहीं रहे सर, सब प्रयास कर रहे हैं अंदर। आप पता, मुझे पता है बिल तो मेरे ऊपर फटना है। बिल तो यही आएगा ना। उस स्थान तक ले जाने की जिम्मेदारी सर गुरुजनों की है। वाई नॉट मी? उस 2 लाख पर मैं ही क्यों नहीं? हाँ, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई आपने। तो ये सारी चीजें, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो भी यूनिवर्सिटी, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज जितने भी आप लोग हैं, आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एक पिलर हैं और आप ही के ऊपर है पूरी यूनिवर्सिटी, और खासकर यंग फैकल्टी और रिसर्च स्टाफ। आप जितना मेहनत से काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी को उतना ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आपकी वजह से, और उतनी ही उसकी मार्केट वैल्यू बनेगी। और जब मार्केट वैल्यू विश्वविद्यालय की बनेगी तो आपकी भी बनेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूनिवर्सिटी की वैल्यू हो और आपकी ना हो। आप कितने भी अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब है तो आपको समाज में कोई भी व्यक्ति कहेगा अरे ये तो वहाँ तो बेकार है, इसका मतलब बेकार होता है ना, ये मानसिकता। लेकिन अगर संस्थान अच्छा है, संस्थान को खड़ा आपने किया है, और संस्थान अच्छा है, तो अगर कोई थोड़ा वीक भी होगा ना तो उसको भी उतने ही सम्मान से देखते। ऐसा तो है नहीं कि काबुल में गधे नहीं होते हैं ना, सभी जगह अच्छे लोग हैं, कुछ कमजोर भी होते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। प्रयास करना चाहिए, संस्थान सबसे पहले, संस्था सर्वोपरि। और जब आप इस इंटेंशन के साथ काम करेंगे, जब पूरा लगन से काम करेंगे, आउटकम 100% आएगा। तो चाहे टीचिंग हो, चाहे आपका रिसर्च हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जिस एरिया में भी आप, अच्छा रिसर्च कहाँ नहीं, और हिंदुस्तान में तो रची बसी हुई है। जो जुगाड़ है वो क्या है? नहीं, अपना काम करने के लिए हम जुगाड़ लगाते हैं, वो रिसर्च ही है। इंडियन, अब बहुत सारे प्रश्न कई बार ये खड़े होते हैं या दिमाग में आते हैं, इन सब की क्या जरूरत है?